people, welcome to Prep Elevate. Today we'll discuss the most frequently asked questions for the VRC section. So as we are inching closer towards CAT, there are a lot of questions which are asked by students, which are asked by people who are taking the exam, and I have just noted down some of the frequently asked questions and I'll try and answer them. If there is any question which I am not addressing in this particular video, which you feel is important and relevant, you could feel free to put it down in the comment box. I'll try and make a video on that later. Okay. So first of all, the most frequently asked question for the VRC section is, how do we pick RCs? So we have 4 RCs. So I'm just taking a reference of the latest CAT paper, CAT 23. So you have 4 RCs, 4 questions per RC. So 16 questions there. So the most frequently asked question is, out of those 4 RCs, which RC should we select? हमें कौन सी RC select करनी चाहिए कि हमारे scores maximize हो? Now remember, there is no perfect answer to this question because everybody has a different level of comfort with language. That is one. Second thing is, even if I take language out of the picture, everybody also has a very different comfort with the subtopics asked. Okay? So it depends on which genre is asked in the RC. Are you comfortable with that genre? And then are you comfortable answering the questions of that genre? So I'll just give you a strategy, a blueprint, and accordingly, you can take it ahead. So सबसे पहला query that we are going to discuss is RC selection. Okay. Now, how do you decide which RC should I go ahead with? Now, remember, sequencing of RCs is very important. That will ensure that you maximize your scores. So, first thing that you should ideally look at is genre, or I could also say the subject. The subject. What do I mean by this? So let's say you are somebody who is very comfortable with tech related topics, and then you get an RC which is based on AI. So your comfort with the topic is definitely going to be great, considering that the language is absolutely readable. So that's another aspect that we are going to discuss. So first, broadly speaking, genre could be one of the deciding factors. Am I really comfortable reading about topics like this? So like this as in, let's say AI, let's say philosophy. What is my history of reading? What is my comfort level with such topics? So your background, your history, your performance in mocks, your performance in PYQs should be the parameters on which you decide that am I really comfortable with these topics or not. Second could be, let's say genre is in my comfort zone. Okay. Another aspect that we should consider is language. Language. Let's take the previous example ahead. I may be comfortable understanding about AI. I may be comfortable understanding about technology. Does that mean that every single passage which revolves around this topic ultimately becomes attempt worthy? No, it's not like that. So, familiarity with language. So, when you're skimming through the RC, right, you're just trying to understand the key points, looking at the RC. So, that is when you should take this into consideration. Am I comfortable with language? Am I being bombarded with a lot of unfamiliar words, difficult words? Do I have to pause for long even during skimming? That could be one of the factors. If yes, then definitely that's not one of the first RCs that I'm going to start with. Maybe that's towards the later half I might attempt it if I understand a bit of it, but definitely not the RC that I'm going to start with. So language again plays an important role. Third thing could be questions. Questions. So ultimately, you are going to be scored, or whatever scores you get, that's going to be based on the questions.
the way in which you attempt the questions, you know, the correctness of your responses. So अगर मुझे आरसी बहुत अच्छे से भी समझ में आ गई है, बट 4 क्वेश्चंस में से 3 क्वेश्चंस में मुझे डाउट है अपने रिस्पॉन्स पे, probably the options are very close, probably the questions are very tricky, तो वहाँ पे मुझे स्कोर्स तो नहीं मिल रहे ना अल्टीमेटली, और हमारा एजेंडा क्या है, टू मैक्सिमाइज आवर स्कोर्स. तो उस केस में questions are important. So when you are looking at your RC and you are deciding कि मुझे ये RC attempt करना है या नहीं करना है, सबसे पहले the subject of the RC is important. How do you decide that? Subject कैसे पता करते हैं? तो skim करते हैं ना जब RC को, तो starting of the RC के कुछ lines आप skim करो, body of the RC and then you know the concluding paragraph. कभी भी सिर्फ first few lines पे decision नहीं लेना चाहिए. That could be deceptive. You might read on and later discover that the RC has suddenly gotten very difficult. So सिर्फ introductory paragraph पे decisions based नहीं करने होते हैं, ठीक है? You should read a little along it. बॉडी ऑफ द पैसेज को भी थोड़ा सा स्किम करो एंड कंक्लूडिंग पैराग्राफ्स में भी थोड़ा सा स्किमिंग होना चाहिए, एंड देन यू डिसाइड. उसके बाद अगर सब्जेक्ट कंफर्टेबल है, देन आई विल लुक एट दिस लैंग्वेज किस तरह का, इज इट वेरी डेंस, lots of difficult words, unfamiliar words, it's, you know, when I am skimming also it's not making a lot of sense, so again that could be one red flag for me. Language के बाद I'm going to look at questions कि अच्छा आरसी समझ में आ गया ऐसा मुझे लग रहा है, बट अल्टीमेटली क्वेश्चंस अगर आंसर नहीं हो रहे तो फायदा नहीं है. सो योर पैरामीटर कुड ऑलवेज बी दैट आउट ऑफ 4 क्वेश्चंस दैट आई हैव फॉर अ पर्टिकुलर आरसी, आई शुड एटलीस्ट लुक एट द क्वेश्चंस एंड फील दैट, you know, 50%, 50 to 75% could be your ballpark figure that you play around with. If you're getting all 4 correct, superb. But फिर भी 2 to 3 questions के बारे में I should definitely be sure. At least I should understand the questions. Options पे तो बाद में आएंगे, ठीक है? I should at least understand the question. तो अगर ये पैरामीटर्स क्वालिफाई हो रहे हैं ना, so that could be one of the first RCs. अभी प्रॉब्लम कहाँ हो जाता है, तीनों एक ही आरसी में यू नो फिट बैठे ऐसा ज़रूरी नहीं है. कभी कभी सब्जेक्ट तो कंफर्टेबल है बट फिर लैंग्वेज कंफर्टेबल नहीं है, या सब्जेक्ट और लैंग्वेज कंफर्टेबल है, क्वेश्चंस डिफिकल्ट है. तो रिमेंबर, अगर सब्जेक्ट मुझे समझ में आ रहा है, लैंग्वेज ठीक ठाक सा समझ में आ रहा है, और क्वेश्चंस में मुझे थोड़ी दिक्कत आ रही है, दैट इज़ नॉट द आरसी दैट आई स्टार्ट विद. बट अल्टीमेटली मुझे 2.5 आरसीज आई एम टारगेटिंग रफली, ठीक है? तो वहाँ पे इट कुड बी द सेकेंड और द यू नो द लास्ट आरसी दैट आई गो हेड विद. बट आई शुड अंडरस्टैंड कि अच्छा ये मेरे अटेम्प्ट ब्रैकेट में तो रहेगा, अटेम्प्ट बकेट में तो रहेगा, ठीक है? सो आरसी में यूजुअली आरसी सिलेक्शन के लिए यू कैन रिमेंबर दीज पॉइंटर्स, सब्जेक्ट, लैंग्वेज एंड देन क्वेश्चंस. उसके बाद द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वेयर यू नो यूजुअली देयर आर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस दैट ऑप्शंस आर टू क्लोज टू एलिमिनेट. ओके, ओके, ऑप्शंस आर टू क्लोज. इसका मतलब क्या होता है, यूजुअली द फाइट इज बिटवीन 2 क्लोज ऑप्शंस, ठीक है? तो बी भी मुझे लग रहा है सही है, सी भी मुझे लग रहा है सही है, बट मुझे कोई डिफरेंस नजर नहीं आ रहा है. नाउ रिमेंबर, दिस हैज़ अ लॉट टू डू विद द बैकग्राउंड वर्क दैट यू आर डूइंग. इमीडिएटली एग्जाम में जाके आपको नहीं समझ में आने वाले वो ऑप्शंस को क्रिएट ही हम इस एजेंडा से करते हैं कि यू नो यू गेट ट्रैप्ड विद इन दीज ऑप्शंस. यही होता है ना माइंड सेट जो एग्जाम पेपर्स क्रिएट होते हैं तब. तो ये इस चीज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए there is a lot of background work that you should be doing. Background मतलब your analysis. Analysis is important. Analysis मतलब when you are studying, when you are answering your mocks, when you are solving past year questions, or when you are doing practice questions, ऐसा कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन टाइप है क्या जो हमेशा आपके लिए गलत हो जाता है? लेट्स से इन्फ्रेंस बेस्ड, नो मैटर हाउ हार्ड आई ट्राई, हमेशा गलत हो जाता है. लेट्स से ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं, विच ऑफ दीज बुक द ऑथर मोस्ट लाइकली अग्री विद, लीस्ट लाइकली अग्री विद, हमेशा गलत हो जाता है. विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स विच स्ट्रेंथन द ऑथर्स ओपिनियन, गलत हो जाता है. वीकन द ऑथर्स ओपिनियन, गलत हो जाता है. तो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन टाइप अगर हमेशा गलत हो रहा है, नो मैटर हाउ हार्ड यू ट्राई, सो दैट क्वेश्चन, अगर उस टाइप के क्वेश्चन आपको किसी आरसी में मिलते हैं, यू शुड बी अ लिटिल केयरफुल. डोंट ट्राई एंड प्ले अराउंड विद एक्यूरेसी देयर, ठीक है? नेक्स्ट थिंग कुड बी, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने सही आंसर मार्क किया है, बट अल्टीमेटली व्हेन द स्कोर्स कम आउट, व्हेन द आंसर्स कम आउट, आई मेक अ मिस्टेक, ठीक है? आई मेक अ मिस्टेक. अब क्या होता है, रिमेंबर, जब आप एनालाइज करते हो ना, व्हेन यू सिट डाउन एंड एनालाइज कि क्या सही जा रहा है, क्या गलत जा रहा है, जो 2 ऑप्शंस में आप यूजुअली गलती करते हो एंड यू एंड अप मार्किंग द रॉन्ग चॉइस,
सबसे पहले समझने की जरूरत है कि वो दो ऑप्शन में डिफरेंस क्या है, ठीक है। कहाँ कहाँ डिफरेंस होता है? देयर इज डिफरेंस इन टोन, ऑप्शंस के टोन में डिफरेंस होता है। one of the sentences could be highly optimistic and then one of them could be mildly optimistic. अब टैली करो, आरसी का टोन कैसा था? वॉज इट हाईली ऑप्टिमिस्टिक, खाली अच्छी चीजें लिखी हुई थी, या वॉज इट माइल्डली ऑप्टिमिस्टिक, लेट्स से इट इज ट्रेटिंग टुवर्ड्स रियलिज्म, ठीक है। अगर वैसा है तो उस ऑप्शन के साथ जाना बेहतर है जो टोन ऑफ द आरसी को जस्टिफाई करता है। सडनली द ऑथर के नॉट बी सुपरबली ऑप्टिमिस्टिक अबाउट समथिंग जो थोड़ी देर पहले ही वॉज अ रियलिस्ट अबाउट, ठीक है। So वहाँ पे there could be some difference. Next difference could be the way in which the words have been used and manipulated. Okay, so words. सो ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ऑप्शंस पढ़ के तो मुझे ऐसा लग रहा है कि दे आर सेइंग द सेम स्टोरी। अल्टीमेटली जब मुझे अरेंज करना होगा या बर्ड्स आई पर्सपेक्टिव जब मैं ले रहा हूँ या ले रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये तो सेम ही चीज़ बोला जा रहा है। मे बी द एसेंस इज सिमिलर, बट कौन से वर्ड्स यूज़ किए गए हैं? अगर दो ऑप्शन क्रिएट किए गए हैं तो उसमें डेफिनेटली कुछ तो डिफरेंस होगा। सो नुआंसेस को पकड़ना है। ओके, व्हेन आई से वर्ड्स, व्हाट आई मीन इज नुआंसेस को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। आई वोंट से दिस इज़ वेरी इजी, बहुत इजी नहीं है ये चीज़, और इसीलिए ही गलतियाँ होती हैं। एंड इसलिए आपको अपने मॉक्स को, अपने अटेम्प्ट्स को, अपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस को एनालाइज करना ज़्यादा ज़रूरी है। इट डज़ नॉट मैटर कि आप कितने मॉक्स कर रहे हैं या आप कितने PYQ सॉल्व कर रहे हैं। अगर एनालिसिस सही डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, यू विल नॉट सी एनी प्रोग्रेस इन योर स्कोर्स। वो या तो स्टैग्नेट होगा या तो नीचे भी जा सकता है इन द वर्स्ट केस सिनेरियो। सो यहाँ पे इट इज़ इम्पोर्टेंट पहले टोन को देख लेना है। अगर दो ऑप्शंस क्लोज हैं तो टोन क्या है, कौन सा बेहतर, इट गोज वेल विद द टोन ऑफ द ओवरऑल आरसी। एंड सेकेंड कुड बी द वर्ड्स, द नुआंसेस, क्या डिफरेंस है दो ऑप्शंस में, दो ऑप्शंस क्लोजली रिलेटेड ऑप्शंस में डिफरेंस क्या है, कहाँ गलती होती है आपसे। थर्ड, विच वी समटाइम्स फेल टू एक्नॉलेज इज impatience. Impatience, वी एक्चुअली फेल टू एक्नॉलेज दिस। ये हमारा पर्सनल ह्यूमन एरर है। तो क्या होता है ना, व्हेन वी हैव टू कंटिन्यूसली रीड समथिंग विच इज़ रियली रियली क्लोज, और उसमें हमें डिफरेंस समझ में नहीं आता है, एंड देन देर इज टाइम प्रेशर एंड देन देर इज अटेम्प्ट प्रेशर, वी वॉन्ट टू मार्क एन आंसर एंड मूव ऑन। ये हम रियलाइज नहीं करते, ये सबकॉन्शियसली हमारे से होता है। सो वी ऑलवेज वी हैव रफली सम अटेम्प्ट सेट इन आवर हेड कि अच्छा ये पैसेज अगर मुझे समझ में आया था तो सारे क्वेश्चन तो मुझे समझ में आने ही चाहिए थे, ये मुझे उतना अच्छा समझ में नहीं आ रहा है। बट इतने बार पढ़ने के बाद भी ना आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि डिफरेंस क्या है। तो एक आंसर मैं मार्क करता हूँ एंड देन लेट मी जस्ट मूव ऑन एंड गो हेड विद इट। दिस इज इम्पेशंस। सो कभी भी इफ़ यू आर कॉट बिटवीन टू वेरी क्लोज ऑप्शंस, रैदर देन वहीं पे उसको निपटा कर आगे बढ़ जाओ, तब आइडियल थिंग कुड बी take a pause, don't attempt it, या attempt the answer which you feel is right, mark it for review, कम बैक लेटर, रिव्यू एंड देन मार्क एन आंसर। या ऐसा वर्स्ट केस सिनेरियो में लगे कि मुझे बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा है, डोंट गो फॉर इट, ठीक है। डोंट अट्रैक्ट नेगेटिव मार्किंग। सो इम्पेशंस अगेन, दिस इज सबकॉन्शियस। जब आप एनालिसिस कर रहे हो ना, इस चीज़ को ध्यान में रखो कि डू यू रियली गेट इम्पेशेंट, स्पेशली फॉर पीपल हु डोंट एंजॉय लैंग्वेज एंड आर वेटिंग फॉर दोज फर्स्ट 40 मिनट्स टू एंड, कि मुझे तो अपना सारा स्ट्रेंथ अभी DILR और कॉन्स में ही दैट इज़ वेयर आई एम गोइंग टू क्रिएट मैजिक। तो उनके लिए बहुत ट्रू है कि इम्पेशेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है, हम दो क्लोज ऑप्शंस में नहीं समझ पाते कि हमें क्या करना चाहिए एंड वी जस्ट मार्क एन आंसर एंड मूव ऑन। तो ये नहीं होने देना है, इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी होती है कि ये नहीं होने देना है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग दैट आई कीप गेटिंग आस्क्ड इज स्टैग्नेशन ऑफ स्कोर्स। दिस इज़ वेरी ट्रू। एक टाइम के बाद आप देखोगे कि आप कितनी भी पढ़ाई कर ले रहे हो, यू आर डूइंग योर एनालिसिस सुप्रीमली वेल, बट आपके स्कोर स्टैग्नेट कर रहे हैं। कुछ चीज़ें यहाँ पे समझने की ज़रूरत है। फर्स्ट ऑफ ऑल,
रीडिंग जो हम करते हैं ना बैकग्राउंड में, it does not really visibly show in our scores. So your scores are not proportional to the number of books, articles, journals, blogs, online stuff that you have read. इसमें डायरेक्टली कोई प्रोपोर्शनैलिटी नहीं है. दैट इज बैकग्राउंड, दैट इज फाउंडेशन. इनफैक्ट टिल द टाइम यू अपियर फॉर कैट एंड इवन आफ्टर दैट 15 मिनट्स ऑफ एक्टिव रीडिंग सबके स्केड्यूल में होना चाहिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट योर फेमिलैरिटी विद लैंग्वेज इज. ये ऐसा कुछ नहीं करता है कि आपके स्कोर्स को एलिवेट करने में इमीडिएटली इम्पैक्ट करता है. ये एक बैकग्राउंड सेट करता है, ये आपका पेशेंस बढ़ाता है उस सब्जेक्ट को लेकर. सो व्हेन यू आर फोर्स्ड टू रीड अनफेमिलियर थिंग्स, do you have the patience to read it and then answer questions related to it? Not every RC is going to be in your comfort zone. ये समझने की ज़रूरत है. 4 RCs हैं, एक अच्छा मिल भी गया, 2 अच्छे मिल भी गए, बट 2 अगेन नॉट इन योर comfort zone. तो उस बैकग्राउंड के लिए ये ज़रूरी है कि you become familiar with different kinds of reading material and reading stuff. 15 मिनट्स की रीडिंग होने ही चाहिए, विदाउट दिस एक्सपेक्टेशन कि ये इमीडिएटली स्कोर्स में रिफ्लेक्ट करेगा. ऐसा नहीं होता. इट बिल्ड्स अप एंड रिफ्लेक्ट्स इन योर स्कोर. नाउ आई एम टेकिंग अ सिनेरियो, यू हैव डन एवरीथिंग परफेक्टली, रीडिंग भी सही से हो रही है, क्वेश्चंस भी सही से एनालाइज हो रहे हैं, स्टिल स्टैग्नेशन आता है. क्यों आता है स्टैग्नेशन? देयर कम्स अ पॉइंट वेयर यू रीच योर पीक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग. उससे ज़्यादा आगे आप शायद उस चीज़ को परसीव नहीं कर पा रहे हो. अब वन मोर थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड, आपका रेफरेंस पॉइंट फॉर योर स्कोर शुड never be one particular mock. No matter what mocks you are answering, mocks are created with this agenda कि वो कैट से एक नॉच हायर क्रिएट किया जाए, टू पुट यू इन अनकंफर्टेबल सिचुएशंस एंड देन टू जज योर डिसीजन मेकिंग. सो वो जो मॉक्स आप लेते हो ना, obviously I'm not saying mocks are not important, but it just gives you a trend. It does not give you absolute values. It gives you a trend कि आप किस तरह से सोचते हो. तो ये जो स्टैग्नेशन आता है ना आपका स्कोर्स का, इन इफ़ यू फील दैट यू आर डूइंग एवरीथिंग करेक्टली एंड बैकग्राउंड में सारी चीज़ें सही हो रही, फिर भी स्कोर स्टैग्नेट हो रहे हैं, डू वन थिंग फॉर योर सेल्फ, टेक एनी अदर मॉक एज अ रेफरेंस. तो जो आप यूजुअली मॉक फॉलो करते हो उसके अलावा किसी चीज़ को रेफरेंस बनाओ, वहाँ पे देखो आपके स्कोर्स आ रहे हैं या नहीं. If 2-3 things point towards the same direction, then that is a matter of concern. But if it so happens ki, let's say I have taken a mock of some brand A, वहाँ पे मेरे स्कोर्स अच्छे नहीं आए, बट ब्रांड बी के मॉक्स में मेरे स्कोर अच्छे आ रहे हैं या एटलीस्ट स्टेबलाइज हो रहे हैं, एंड देन अनदर रेफरेंस डेफिनेटली कुड बी PYQ. इस स्टेज पे तो डेफिनेटली PYQ. सो कभी भी आपको लग रहा है कि मुझे मॉक्स का समझ में नहीं आ रहा है, अचानक से बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, कम डिफिकल्ट हो जाता है, एंड एवरी मॉक इज टेलिंग मी अ डिफरेंट स्टोरी, देन PYQ डेफिनेटली यू शुड आंसर विद दिस अंडरस्टैंडिंग कि अगर पास्ट ईयर क्वेश्चंस मुझसे अच्छे से बन रहे हैं, वहाँ मेरे स्कोर्स रफली स्टेबल हो रहे हैं, तो इन केस मॉक्स में स्टैग्नेशन थोड़ी सी मुझे दिखती भी है कुछ मॉक्स में, इट इज़ ओके, it is understandable, it is okay. It's not something that you should really be overwhelmed about. ठीक है. सो ये ओवरवेलम इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए. ठीक है. तो सबसे पहला तो RC वी हैव डिस्कस, देन वी हैव डिस्कस दैट ऑप्शंस आर टू क्लोज, एंड देन वी हैव डिस्कस कि स्टैग्नेशन हो जाता है आपके स्कोर्स में, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए. Pretty much these are the FAQs that I keep getting from people, that how should we work on these. So I've just tried to give you my answers and my opinion on this. If there is anything else that I've missed that you would like me to particularly address, please feel free to put it down in the comment box. I'll just read through the comments and try creating videos on them as well. I hope you've had a good understanding and this video has served to be important and informative. If yes, please consider liking the video, sharing it, and please share your love and support on this video. Thank you so much and take care.